Good morning, students. How are you all? I hope everyone is well. And recently, we have given the first periodic assessment, and I hope everyone has given it in a good way, and everyone will get the good marks. So, all the best for the assessment. Now, the topic which we left before the assessment is momentum. Okay, the second chapter we are taking, that is force and laws of motion, and of this we have taken the topic momentum. And what is momentum? Momentum is nothing but momentum, which is denoted by p, and it is nothing but product of mass into velocity. Whenever the object moves with certain velocity, it has the momentum. यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी वेलोसिटी के साथ मूव करता है, सो इट हैज़ यस मोमेंटम. अब ये मोमेंटम किस में आएगा? मूविंग ऑब्जेक्ट में. अब देखो उसके बाद हमने जो टॉपिक देखा था वो ये था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. एंड व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? एंड इट सेज दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड. यानी किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है. यानी हम इसे दूसरे एग्जाम्पल से ऐसे भी समझ सकते हैं, द मोमेंटम, जैसे कोलिजन के बारे में देखते हैं, द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. यानी टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे हमें एक न्यूमेरिकल लेना है, जो कि बहुत ही कॉमन न्यूमेरिकल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे न्यूमेरिकल देखते क्या है. सो हियर आई हैव रिटन द न्यूमेरिकल दैट साइड. सी, आई एम रीडिंग द न्यूमेरिकल. फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, अ बुलेट ऑफ मास 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial velocity of the rifle. Here we have taken one numerical, and ये जो example है, it is a very common one, कि whenever you fire a bullet from a rifle or gun, जब भी हम गन या राइफल का यूज़ करके हम फायर करते हैं, so what we observe that the bullet, after firing the bullet, the gun also has some velocity, and that velocity or that moment is backward. That is called as recoil velocity of the gun or recoil velocity of the rifle. तो अब हमें ये निकालना है कि अगर हमारे पास velocity given है, velocity of the bullet and the mass of the gun as well as mass of the bullet, so we can easily calculate the velocity of the gun. This is called as recoil velocity. कई बार आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, है ना, जब भी हम गन से फायर करेंगे तो गन पीछे आती है. जैसे मैंने गन पकड़ा, फायर किया, तो फायर करने के बाद वो बैक साइड आती है, तो वो जो पीछे आने को ही हम क्या कहते हैं? रिकॉल वेलोसिटी. तो लेट्स सी दैट. अब क्वेश्चन काफ़ी इजी है. यहाँ पे क्या बोला है? फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg. तो कुछ गिवन है. अब ये स्टूडेंट, मैं यहाँ पर एक चीज़ और रिपीट करना चाहूँगा. आई हैव सीन व्हेन आई हैव गिवन exercise of your first chapter, so many students have written the numerical like a textual answer. टेक्सचुअल आंसर के जैसे जैसे हम वर्ड वाले आंसर्स लिखते हैं ना, उस तरीके से बिल्कुल एक लाइन में पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया है. दैट इज अ रॉन्ग मेथड. टाइम टू टाइम आई हैव गिवन यू द रिवीजन हाउ टू राइट द न्यूमेरिकल. While writing the numerical, you must start from this margin. Write down here solution. After solution, you can write the given. And given लिखने के बाद आपको जो क्वांटिटी given है उसको वन बाय वन एक एक लाइन में लिखनी है ना. फॉर एग्जाम्पल, here from rifle of mass 4 kg. So here capital M is the mass of rifle and it is given 4 kg. So this is the first given. So write down like this. After that, a bullet of mass 50 gram. So next given must be here. Mass of bullet, small m. It is 50 gram. Now here
It is given in the SI units. Is it SI unit? No, it is given in CGS unit. You have to convert it into the SI unit. तो SI unit में convert करने के लिए what? इसको kg में convert करने के लिए what you have to do? You have to divide it by 1000. So 50 divided by 1000. So that is equals to 50 multiplied by 10 to the power minus 3 kg. Okay, this is the गिवन बराबर एक लाइन में ही लिखना है. आप रैंडमली कैसे भी आड़ा तिरछा, कोई इधर लिख रहा है कोई उधर लिख रहा है, समझ में नहीं आता है कि न्यूमेरिकल है या क्या कुछ और है ना. तो इट मस्ट बी रिटन इन दिस वे. नाउ दिस इज योर फर्स्ट मार्जिन, मेन मार्जिन. आफ्टर मेन मार्जिन यू हैव टू गिव वन मोर सब मार्जिन. दिस इज द सब मार्जिन. और उसके बाद ही यहाँ पर लिखना है. यहाँ पे गिवन टू फाइंड फॉर्मूला बस इतनी चीजें आएगी, बाकी सब इस तरफ. तो नाउ गिवन के बाद आता है गिवन और कुछ है पहले देख लेते हैं. 50 ग्राम fired with an initial velocity of 35 meter per second. So here velocity of the bullet, here v, initial velocity is uv for bullet. It is how much? 35 meters per second. इनिशियल है करके u दिया है. नाउ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन यू हैव टू फाइंड आउट, है ना. टू फाइंड है ये, तो वो हम नहीं लिखते. ठीक है. नाउ हियर टू फाइंड, देखो ये फर्स्ट मार्जिन था. फर्स्ट मार्जिन के बाद ये जो सेकंड सब मार्जिन है उसमें सिर्फ गिवन टू फाइंड ही आएगा. उसके बाद पूरा कैलकुलेशन इस तरफ, गलत नहीं होना चाहिए. ओके. सो नाउ टू फाइंड व्हाट? u g, that is initial velocity of the gun, that is equals to question mark. Okay, so here it is u g. Now next one is given to find. Here is formula. Okay, formula कौन सा यूज किया है हमने? formula is here momentum, E is equals to m into v. ओके. नाउ अब ये तो आ गया. अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, लेट्स सी. नाउ वी आर यूजिंग द फॉर्मूला दैट मोमेंटम इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू m into v. बट हियर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी हैव टू यूज, एंड अकॉर्डिंग टू दैट the total momentum before collision is equals to before collision it is equals to the total momentum after collision. Okay, the total momentum before collision is equals to the total momentum after collision. So अब before collision and after collision क्या है? तो जैसे देखिए अब यहाँ पर कोलिजन की बात करने से अच्छा ना, यहाँ पे कोलिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम फायर कर रहे हैं, है ना. सो इन प्लेस ऑफ यूजिंग द कोलिजन वर्ड वी कैन यूज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व. सो हियर द मोमेंटम बिफोर फायर the total momentum before fire is equals to the total momentum after fire. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या लिया है कि मोमेंटम कैलकुलेट किया. मोमेंटम को हम कैलकुलेट करेंगे बिफोर फायर कितना था और आफ्टर फायर कितना था. Okay, so therefore it obeys the law of conservation of momentum. So before
फायर एंड आफ्टर फायर अगर हम देखें, तो हियर द टोटल मोमेंटम ऑफ द this incident is like this one. The momentum of before momentum, that momentum before fire. अब before fire में तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि before fire all the objects is at rest. तो इसका मतलब v जो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी जो थी वो वेलोसिटी जीरो थी, isn't it? तो before fire it is zero and after fire in total momentum अगर हम ले momentum of the say suppose momentum of the gun, तो for this one है ना, momentum of the gun, momentum of the gun और राइफल है ना, तो ये कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास और वेलोसिटी जो भी थी इसकी u, ये एक हो गया, प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट भी होगा, है ना, तो ये कितना होगा, स्मॉल m, और जो भी इसकी वेलोसिटी होगी u इज इक्वल टू उस तरफ आफ्टर फायर क्या होगा, m मास ऑफ द गन, या फिर आपका मोमेंटम अगर हमें निकालना है पहले किसका निकालना पड़ेगा, दैट इज राइफल का, तो कैपिटल M इंटू उसकी वेलोसिटी प्लस स्मॉल इंटू यू। देखो सिंपल सी बात है कि हमें करना क्या है, मोमेंटम ऑफ द राइफल प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट, ये बिफोर फायरिंग ये लेना है। ये किसका मोमेंटम हुआ, यस राइफल का, ये मोमेंटम किसका हुआ, बुलेट का। राइफल और बुलेट दोनों का मोमेंटम बिफोर फायरिंग और राइफल और बुलेट इसका मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो बिफोर फायरिंग इनकी यू की जो वैल्यू थी, वेलोसिटी कितनी थी, अब बिफोर फायरिंग तो दोनों रेस्ट पे थे, आपका गन भी रेस्ट यानी राइफल भी रेस्ट पे था और बुलेट भी रेस्ट पे, इसलिए यू की वैल्यू जीरो, तो टोटल m इंटू वी यू इज जीरो, हियर m इंटू यू इज ऑल्सो जीरो, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, जीरो। ओके, क्योंकि बिफोर फायरिंग तो जीरो ही था, लेकिन आफ्टर फायर इट इज कैपिटल M U plus small u. Here capital M U, capital M is the mass of, yes, rifle and mass of bullet, और ये velocity of rifle, velocity of bullet. So it equals to, अब मैं इस तरफ ले रहा हूं, अब ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है दिस वेलोसिटी ऑफ द गन, इसका मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है u, तो बाकी चीजें हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो इट विल बी माइनस m u इज इक्वल्स टू कैपिटल, ये u किसका है, ये बुलेट का है और ये गन या फिर राइफल का है, गन लिख देता हूं, ठीक है। सो नाउ सी, ये इस तरफ का मल्टीप्लाइड में लाइक दिस, क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, सिर्फ ये u जो d था उसको इस तरफ रखा, बाकी m को ट्रांसफर कर दिया, तो मल्टीप्लाइड में था इसीलिए क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ये पहले प्लस वाले को इधर भेजा तो माइनस हुआ और मल्टीप्लाइड वाला इधर डिवाइड में आ गया, तो इट विल बिकम, अब वैल्यूज पुट कर दो, दिस इज द मास ऑफ बुलेट, तो बुलेट का मास कितना था 50 माइनस है 50 इंटू 10⁻³ इंटू ub मीन्स बुलेट की वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी कितनी थी 35 अपॉन मास ऑफ the rifle 4 is equals to ug, that is velocity of the gun or rifle you can say. So now let's solve this. So when you solve this you will get minus 0.44, okay,
देखो और एक बार मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि न्यूमेरिकल में क्या दिया गया था कि गन से जब हम फायर करते हैं, है ना, तो उस वक्त फायर करने के बाद गन जो पीछे रिकॉइल होती है उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी थी। तो हमने यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से फाइंड आउट किया कि मोमेंटम बिफोर फायर एंड आफ्टर फायर आर सेम। तो बिफोर फायर वेलोसिटी जीरो थी, इसलिए टोटल मोमेंटम बिफोर फायर इज जीरो, है ना, ये जीरो आ गया। और आफ्टर फायर में हमने मोमेंटम ऑफ द राइफल प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट, इन दोनों का रखा, मोमेंटम ऑफ द राइफल, मोमेंटम ऑफ द बुलेट, मोमेंटम को हम दोनों का रखा। और उसके बाद आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, इसमें हम वैल्यू पुट करके हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया Vg, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ गन, है ना। तो दिस इज नथिंग बट अ रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। तो डियर स्टूडेंट, ये हमें फाइंड आउट करना है इस तरीके से। सो दिस इज द यूज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसे आप काफ़ी अच्छे से समझ लीजिए कि किस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया है। ओके, सो हियर माइनस साइन, व्हाट इट इंडिकेट्स, माइनस साइन इंडिकेट दैट इट इज इन अ अपोजिट डायरेक्शन, it is in a opposite direction. So this is the numerical based on the momentum, okay, law of conservation of momentum. So I'll give you the homework on the next day. Okay, tomorrow I'll give you the homework. Till then, bye bye, see you.